Good afternoon, everyone. I, Dr. Manasvi Maheshwari, Associate Professor, DME Media School, Delhi Metropolitan Education, welcome you all to the 26th episode of Vibrant India series. I also welcome all our viewers who are watching us live on Facebook. Vibrant India series is an initiative of DME Media School for celebrating 75 years of India's independence. This series will be a year-long exercise. As a part of this series, we invite inspiring personalities for online talk, interview, and interaction with our students. The invited personalities for this series are from all walks of life and from all parts of the country. And today our special guest is a woman of substance who is best known for her high altitude motorcycle riding and social work, Ms. Pallavi Faussar. Before we officially introduce and welcome Ms. Pallavi, I would like to take a moment to introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. DME, Delhi Metropolitan Education, is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. The institute offers BBA, BALLB, BBLLB with BCI approval, and BA-JMC programs. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of the industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in Journalism and Mass Communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include BG Varghese Lecture Series, Peer-to-Peer FDP, International Film Festival SIFI, International Conference ICANN, and Vritika Convention of Media Students. And the newly added in the list is VIS Vibrant India series. It is our privilege to introduce to you our guest, the personality of the 26th episode of VIS. I invite Abhishek Mishra, student of DME Media School, to introduce our guest of the day. Abhishek. Thank you, ma'am. Ms. Pallavi Faussar is best known for her high-altitude motorcycle riding and social work. She has made several records in solo biking and has been featured multiple times in the Limca Book of Records. She is the first woman to ride 8 mountain passes above 5,000 meters and is also the first motorcyclist to create the world record twice for riding solo to the top of the highest mountain pass in the world. Ms. Faussar holds the distinction of riding atop 15 mountain passes above 5,000 meters and was honored with the Women Achiever Award by the Lucknow Management Association in 2018. Ma'am is the recipient of Nari Shakti Award by the President of India and has been the brand ambassador of Women and Child Helpline 181 in Uttar Pradesh. Ms. Faussar has created unparalleled landmarks in the field of motorcycling and social work. Let us see a few glimpses from her life. Thank you, ma'am, for joining us today. It is indeed an honor to host you. I now request Dr. Shushmita Bala, Head DME Media School, to welcome the guest. Over to you, ma'am. Thank you, Manasvi. Welcome everybody in episode 26 of Vibrant India series. We launched this digital program on August 9 on the anniversary of Quit India movement. Vibrant India series is a tribute to all those people who made supreme sacrifices for the independence of our motherland. India will be completing 75 years of independence this year only. We started celebration last year only. This program has been launched as a part of these celebrations. In the first episode of Vibrant India series, our guest was Brigadier P.K. Saxena, who served the country in 2 wars. Following this, Madam Bhavrin Kandari, a known environment activist, Professor Ujjwal K. Chaudhary, senior media educator and column writer, Dr. Nakul Parashar, science communicator and director of Vigyan Prasad, Dr. Munisha Behere, social activist from the Northeast, Mr. Rajesh Badal, senior journalist, writer, filmmaker, and broadcaster,
Colonel R.K. Dargan, Professor and Advisor at MIT School of Communication, MIT University Noida, graced this program. To name the other celebrated personalities in the series, Mr. Ashish Kulkarni, the pioneer of animation industry, Madam Tripti S. Shingle, an entrepreneur and startup consultant, Captain Dharmveer Singh, a versatile personality and an army man, Madam Jyotika Kalra, member of National Human Rights Commission, Mr. Sanjay Banerjee, a sport journalist, broadcaster and commentator, Mr. Augustine Valet, communication specialist with UNICEF, Captain Indrani Singh, a pilot and entrepreneur, Ms. Vibhala Khera, a social activist, Mr. Arvind Gore, a theatre personality, Dr. Satchidanand Joshi, a writer and educational administrator, Lieutenant General Sanjay Kulkarni from the Indian Army, Dr. Gurmeet Singh, author and global Hindi educator, and squadron leader Prerna Chaturvedi, a veteran of Indian Air Force, for our guest. Since the beginning of 2022, Mr. Shambhunath Shukla, senior journalist, column writer and author, Mr. Lakshmi Shankar Bajpayee, an eminent poet, commentator and broadcaster, Sufi Sayyid Ajmal Nizami, custodian of Sufi Dargah Nizamuddin Aulia, and Dr. Dev Aikad, media educator from the University of North Carolina in the US, have graced the Vibrant India series. In the making of this country, we all play our roles as a soldier, doctor, engineer, educator, journalist, lawyer, environment activist, social activist, science communicator, filmmaker, as a human rights protector, communicator, commentator, scientist. And today, in episode 26, we have an inspiring personality, Ms. Pallavi Fauzdar, an adventure, motorcyclist, and social worker. So, welcome, Madam Pallavi, in Vibrant India series. मुझे तो लगता है कि आपने इतने सारे काम इस तरह से जो किए हैं, वो दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं, और हम सभी आपके बातें सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं, और स्टूडेंट्स जरूर उनके पास इतने सारे क्वेश्चन होंगे आपकी बातों को सुन के कि आप को किस तरह से आप उनको एक्सप्लेन करेंगी, बताएंगी, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है. सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. और आपने सही कहा, हम सब बहुत ईगर है मैम की बात सुनने के लिए, उनकी लाइव स्टोरी सुनने के लिए. एंड फॉर दिस आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अमरीश सक्सेना, डीन डीएमई मीडिया स्कूल, डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस डीएमई, originator and ideator of Viz, to address the gathering and take the program forward. Over to you, sir. Thank you, Manasi. So as we all know that today we have Pallavi Fauzdar with us, who is a known name, and she is undoubtedly an inspiration to everybody, not only to the young people, but to all the women, to all those people who want to do something good, something substantial in their life. And the most important thing which I could look into in her life and achievements that she has made is that her constant passion to do the things which she wants to do, which is the ultimate thing, should be the ultimate thing for any individual, for any youth, since this whole audience is comprised of youth. So, and that is in fact the reason behind that I conceived this kind of program, that let us bring some such people who have made a substantial mark in their lives to the students and to interact with them, so that they also get inspired and they also try to do something good in their life. And talking about this particular program, Vibrant India series,
This program is into 4 segments. The first segment we are already in, and in the second segment, I would request Madam Pallavi to narrate her life journey, telling us as to what all she did, how she did, and what was the motivation with which she continued doing this. And all such experiences and anecdotes which could be inspiring to everybody in this session. That will be followed by the third segment, wherein I will be asking certain questions to her to know more about her and her achievements. And that will be followed by the final segment, wherein the students will be asking questions to her. Normally, we allow 3 or 4 students to ask questions, though there are always more students ready for this. But today I've come to know that there's a long list of the students who want to ask questions to you. So I'm sure that this session is going to be really lively. So at this point मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पल्लवी फौजदार जी की आप अब इस सेशन में बागडोर संभालें और हम सारे लोगों को वो सारी चीजें बताएं जो हम आपसे सुनना चाहते हैं. Thanks a lot, Dean, for the wonderful introduction. Good evening to all the respected members of the faculty and to all my young friends. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to be here to share the lifetime experience of mine. And I'll be glad if any part of my life experience can be helpful or and be a guidance to you all in making choices and decisions in your life and career. So कम समय लेते हुए मैं कोशिश करूंगी because समय का अभाव है, जैसा कि आपने मुझे पहले ही बताया था. जी. किसी भी चीज को करने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, चाहे वो एक सपना ही देखने का एक दौर हो या एक वो हो, एक मैं कहूंगी एक तरीका होता है. आप उसको जब तक एक श्रेणी में नहीं लेकर के आते हैं, एक रूल्स होते हैं, हर एक सक्सेस का एक मंत्र होता है. तो ऐसे ही मेरे खुद के बनाए हुए भी पर्सनल एक रूल्स हैं जिनसे मैं स्टार्ट करती हूँ. मेरी जिंदगी शुरू होती है जो होता है, जो हमारे बचपन से शुरू हो जाता है. जब हम पैदा होते हैं, सपने देखना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज हैव अ ड्रीम, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक have a clear goal and that should be permanent. जब आप अक्सर हमारे सपने बढ़ती उम्र के साथ में हमारे जो रेत होती है, रेत की तरह से फिसलते चले जाते हैं. जैसे रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं हमारे हाथ में होते हैं, पर धीरे धीरे उनकी हवा निकलती जाती है, कुछ फूट जाते हैं, वक्त की रफ्तार में पीछे छूट जाते हैं. बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रह जाते हैं. इन्हीं में से मैं ये जो ड्रीम्स की जो जर्नी है, इसमें you have to make sure what you want to become, what you want from yourself. Figure out what makes you happy actually, because अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में शेयर करूं, बचपन से मेरे सपने कुछ और थे. I wanted to join army, but समय की रफ्तार के साथ में वो बदलते गए. मेरी जो स्टडीज रही, I did MFA in applied art, which is again related to advertising and all. फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, वहां मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. I did jewelry designing, then I did pranic healing. I did a lot because छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ आप करना चाहते हो, लेकिन एक होता है जो सेटिस्फेक्शन, जो आपकी सेल्फ डिस्कवरी की जो जर्नी होती है, जहां आप खुद को खोजना चाहते हैं. My father met with an accident in 2000. It was a very major accident. काफी डैमेजेस हुए थे. तो उसमें मेरे को, आई एम फ्रॉम आगरा, इट्स अ स्मॉल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. वहां से मेरे को जो होलसेल मार्केट था, मेडिसिन का एक कार्टन लेकर के आना होता था, एंड द मीडियम वाज माय बाइक. तो वो बाइक के मैं टैंक पे रख करके लेकर के आती थी. तो वहां से जो एंड जब मैं वो बाइक चलाती थी, आई यूज्ड टू फील सो कॉन्फिडेंट, एंड वो कॉन्फिडेंस मेरे को कोई काम करने से नहीं मिला. तो आई थॉट कि दिस इज समथिंग व्हिच ब्रिंग्स क्लोज टू माई सेल्फ. तो क्यों ना इसी को माध्यम बनाया जाए
और हमेशा से एक रेबेलियन टाइप रही हूँ, क्योंकि एक लड़की थी तो जर्नी हमेशा एक महिला की बहुत आसान नहीं होती है, चुनौती भरी होती है, और चुनौतियां मुझे बचपन से ही पसंद है। आई लव एडवेंचर, आई लव दैट एड्रेनलिन रश ऑलवेज। तो उसी को मैंने चुना और अपने उस सपने को आगे लेकर के चली मैं। कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बोलूंगी, जो एक चीज होती है, ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ। जब आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं या ठानते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको जरूरत होती है, आपको अपने ऊपर एक विश्वास रखना होता है। नो मैटर व्हाट अदर टेल्स यू, व्हाट दे से कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट। बिकॉज अक्सर जो मेरे साथ में हुआ, मेरे साथ में यही बचपन में बोला कि आप लड़की हो, बाइक नहीं चला सकती हो, अगर आपको चलाना है स्कूटी चलाओ, और चीजें हैं और माध्यम हैं। तो मैंने निर्णय लिया कि इट्स माय लाइफ। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वो तब तक नहीं होती है जब तक आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू नहीं कर देते। यू आर एजुकेटेड इनफ, if you are not able to take your own decisions, I will not say you are an empowered woman. मैंने अपनी जिंदगी में ठाना कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो मेरा एक पहला, मैं कहूंगी दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माय ड्रीम, जो मैं करना चाहती थी। दैट वाज अगेन बाइकिंग। तो यहाँ पे मेरा जो थर्ड, जो मेरे बनाया हुआ एक रूल था, ब्रेक द रूल्स। with again I'm saying break the rules, not the law. So break the old convention, not the law. Trust me, think out of the box. जो जनरली हम करते हैं या जो दुनिया में होता आ रहा है, उससे अलग हट करके हम क्या कर सकते हैं, लीग से अलग हट करके हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने वही अपनी जिंदगी में किया। लोगों ने मुझे बहुत रोका, कहा भी कि ये चीज नहीं कर सकती हो और ये नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे माँ बाप ने ही मुझे जो सबसे पहले, दो तरह के लोग होते हैं जो आपको हमेशा रोकते हैं आगे बढ़ने से। एक होते हैं जो बहुत ज्यादा आपकी परवाह करते हैं, एक होते हैं जो चाहते हैं कि आप कहीं जीवन के लक्ष्य में या आगे उनसे ज्यादा ना निकल जाए। तो ऐसी ही जर्नी थी। सबसे पहले जो मेरा इरादा था, मैं बाइक सभी चलाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। इसमें बढ़ चढ़कर ऐसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, सभी लोग चलाते हैं। तो आई वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल, कि जो एक एग्जाम्पल सेट करे, नॉट ओनली फॉर द वुमेन, फॉर द इंटायर यूथ, कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी ही जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। और जो कहते हैं ना कि डोंट बी अफ्रेड टू फेल, क्योंकि अक्सर हम जब करने की शुरुआत करते हैं तो एक चीज होती है, दुनिया हमको बाद में रोकती है, हम खुद अपने आप को पहले रोकते हैं। तो वही एक द्वंद, जो एक डिबेट होती है, वो मेरे अंदर चल रहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को ये करना चाहिए या नहीं। जब मैंने अपने फैमिली के साथ में ये थॉट शेयर किया, आई वांटेड टू गो ऑन राइड, उन्होंने बोला ठीक है जाओ, नॉट अ बिग डील। मैंने बोला मेरे को लद्दाख जाना है। ओके जाओ, कब जाना है, फ्लाइट की टिकट्स बुक कर देते हैं, या बाय रोड जाना चाहते हैं। मैंने कहा आई गो, डेफिनेटली आई गो बाय रोड। ओके, लेट मी कंप्लीट। तो उन्होंने बोला कि बताओ। मैंने कहा आई वांट टू गो ऑन बाइक, एंड दैट टू सोलो। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक अगेंस्ट माय आइडिया, आर यू क्रेजी? बिकॉज there was a time when I was in college, I was just I was a daughter, I was a sister, right? But जब ये आइडिया मैंने शेयर किया, वो मेरी शादी को 10 साल निकल चुके थे। I was not only a daughter or a sister, I was a daughter-in-law, a wife, and उससे भी बढ़कर चीज, I was a mother of 2 young boys. तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। एंड जो सबसे आगे आते हैं ना, जो कहते हैं डोंट लिसन टू नेसेयर्स, जो आपको रोकते हैं, उनमें सबसे आगे मेरी माँ थी, जिन्होंने कहा कि आर यू क्रेजी, व्हाई यू वांट टू डू दिस, यू हैव अ हैप्पी फैमिली, लुक आफ्टर योर फैमिली। एंड एक वक्त था जब ये खुरापात के जो तुमको सूट करती है, बट अब नहीं। तब मेरी माँ से मेरा एक सवाल था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। माँ, जरूर आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ सपने देखे होंगे। अगर मैं वो वक्त आपको लौटाना चाहूँ, तो क्या कुछ ऐसा है जो आज भी आप अपना पूरा करना चाहते हैं?
मेरी माँ ने मुझसे नेक्स्ट सवाल ये कहा कि कब जाना है, मेरी बात को दिल से समझते हुए। तो पहला एक इंसान जिसको कहते हैं ना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया, तब मैं 2015 में अपनी सोलो जर्नी पर निकली, जो मेरी अपनी डर पे विजय पा करके, अपने आप पर विश्वास रख करके, अपने सपने को जिंदा रख करके 2015 में मैंने एक के बाद एक 16 पासेस कवर किए, जिसमें 7 passes were above 5,000 meter, which was my first record. जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज बहुत सारी चुनौतियां इसमें आई थी। जब मैं खारदुंग तक पहुंची थी तो 5 to 5 avalanches आए थे बैक टू बैक, जिसमें मेरी जर्नी में मुझे लगा कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। पर एक जो विश्वास था अपने ऊपर, जो मैंने कहा कि ट्रस्ट योरसेल्फ, अपनी हिम्मत, क्योंकि चुनौतियां ऐसी ही जिंदगी में सामने आती हैं जो आपका टेस्ट लेती हैं कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपका दृढ़ निश्चय कितना पक्का है, आप कितना आगे जा सकते हो। तो ये सिर्फ कोई और तय नहीं करता, सिर्फ आप अपने लिए तय करते हैं। तो वो एक वक्त था, लोगों ने मुझे बोला वापस जाना है, बट मेरे मन में एक यही चीज थी कि इस जर्नी में मुझे आगे पीछे तो जाना ही नहीं है। अगर पीछे जाना भी है तो वो कहते हैं ना, जब पीछे आप एक कदम रखते हो तो आगे छलांग लेने के लिए ही रखते हो, क्योंकि वो जर्नी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी। दैट जर्नी वाज फॉर एंटायर वुमेन फ्रेटर्निटी, दैट जर्नी वाज फॉर ऑल द पीपल जो कॉन्फिडेंस खो चुके थे, जो आज अपनी परिस्थिति के साथ समझौता करके बैठे थे कि अब यही हमारी डेस्टिनी है जो हम कर रहे हैं। बिकॉज इतने सालों के बाद में भी लोगों की सोच में कुछ खास फर्क मैंने नहीं देखा था। तो आज भी वो महिलाओं को लेकर के वो ये कहते थे कि नहीं, जो हमने सोच लिया वही आपको करना है। तो इसी चीज को मैंने कंटिन्यू करते हुए मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती रही। अपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 2015 में ही, मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना अक्टूबर में, जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया इस चीज को लेकर के कि मैं और भी कर सकती हूँ, या कह लीजिए कॉन्फिडेंस और नशा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। माना पास पहुंच करके, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास कहा जाता है, जिसकी हाइट है 7,754 फीट, वहां पहुंच करके मेरा दूसरा विश्व रिकॉर्ड बना था। इसी को कंटिन्यू करते हुए मेरा था कि यू हैव टू लाइक, जर्नी मेरी चलती जा रही थी। लोगों ने मुझे बीच बीच में बहुत टोका भी कि ये चीज नहीं हो पाएगी, लेकिन बिलीव मी, असली जीत का मजा तो तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो जीवन की ये मेरी सफलता की जर्नी चलती चली गई। इसी के साथ में एक जो नेक्स्ट चीज थी कि जब आपको कोई चीज पानी होती है तो यू हैव टू ब्रेक योर लिमिट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। वो चीज तभी संभव आती है व्हेन यू पुट योर माइंड, हार्ट एंड योर सोल इनटू इट। इफ यू हैव टू अचीव समथिंग, यू आर ऑलवेज, आपका जो कंपटीशन होता है वो बाहर कहीं की दुनिया में कोई नहीं होता है। यू आर योर ओन कंपटीशन, यू आर कंपीटिंग योरसेल्फ। सो जो मेरी जर्नी में था, जो मेरी प्लानिंग में हमेशा रहता था, प्लान ए, प्लान बी, जो हमेशा करना होता था। तो जैसे मैंने बोला, ब्रेक योर लिमिट्स ऑफ हार्ड वर्क। जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसमें। मैं जब अपनी जर्नी पे निकलती थी तो अक्सर लोग मेरे से ये सवाल करते थे कि आप कैसे कर लेती हैं, अकेले कैसे संभव है कुछ ब्रेकडाउन हो, स्पेशली व्हेन यू गो टुवर्ड्स माउंटेन, बिकॉज इतनी आसान नहीं होता है। तो उसमें जो मेरी प्रिपरेशन होती थी, जो हार्ड वर्क, जो एक लग्न उसके पीछे होती थी, मैकेनिकल ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग, अगर कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो हाउ टू कीप योरसेल्फ, एक फर्स्ट एड देने के बाद जब तक कि आपको प्रॉपर एड नहीं मिल जाती तब तक हाउ डू यू हैव टू सर्वाइव, रोड मैप्स एंड ऑल। तो लॉट ऑफ प्रिपरेशंस वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस। एंड वैसे तो शेयर करने के लिए बहुत कुछ है काफी सारी चीजें हैं। मैं बाकी चीजें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगी कि आप इस सागर में से क्या क्या लेना चाहते हैं। तो काफी कुछ निर्भर करता है आपके सवाल पे, जो आप लोग मुझसे पूछना चाहेंगे।
बट लास्ट में मैं ये कहूंगी कि मुझे रिकग्निशन मिला, मुझे काफी लोगों का प्यार मिला। जो लास्ट मेरा जो लाइफ की जर्नी का या किसी का भी होना चाहिए, मैं वो बोलूंगी यू शुड नेवर एवर फॉरगेट टू पे बैक टू योर सोसाइटी, टू योर नेशन। तो जो मेरा सोशल वर्क का जो मेरा सफर था वो यहाँ से शुरू हुआ था। आफ्टर गेटिंग सो मेनी अवार्ड, सो मेनी रिकग्निशन, नारी शक्ति अवार्ड जब पुरस्कार मुझे मिला था, उसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास हुआ कि जब लोगों ने इतना विश्वास किया है, जब वो मेरी तरफ एक किसी आशा की तरफ से देखते हैं, तो नाउ आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल अगेन what I can do for this community, for this society, because हम लोग अपने इर्द गिर्द एक अच्छे नेशन की कल्पना तो करते हैं, हम अपने समाज में एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, बट हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दैट। तो उसके चलते उस सोच को आगे रखते हुए 181 जो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में मैंने एक स्टेप लिया था, जो 181 वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसको प्रमोट किया था। एंड उसकी शुरुआत, क्योंकि शहरों से ज्यादा गांव और कस्बों में बदलाव की जरूरत है, बिकॉज किसी भी अगर मजबूत समाज की आप कल्पना करते हैं तो वो हमारे कहते हैं ना, मकान बनाने से पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। जब हमारे कस्बे और जो गांव है वहां से सोच बदलेगी, तभी एक सुखद स्वराष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। तो वुमेन एंड हेल्पलाइन की चलते हुए मैंने एक वुमेन टीम को खड़ा किया, बाइकर्स वुमेन टीम को लेकर के, और उनको उत्तर प्रदेश के जिलों में लेकर के गए, और वहां पे महिलाओं से रिलेटेड उनके अधिकारों के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, जो उनको एक जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने किए। और ये सिलसिला चलता रहा, जैसे और भी प्रोग्राम्स थे, बिकॉज आई एम अ मदर, तो मेल न्यूट्रिशन को लेकर के जो थे, तो ये सारी जर्नी मैंने अपनी बाइक पे ही कंटिन्यू करी, क्योंकि यही एक मेरा माध्यम था। इसी से मुझे ख्याति प्राप्त हुई, और मेरे को लगता था कि ये एक इस उम्र में भी अगर मैं कर पा रही हूँ, तो इट क्लियरली शोज कि पहली चीज, सपने देखने की कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरी चीज जो बोलते हैं कि उम्र हो चुकी है, उसके लिए भी मैं कहूंगी कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जब तक आप दृढ़ निश्चय, आपका यहाँ से इरादा पक्का है, नो वन कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट यू योरसेल्फ। तो जी ऐसे तो शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, आई एम कंफ्यूज कि क्या बताऊं और नहीं, तो आप अपने सवाल, मैं बाकी सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। जी थैंक यू पल्लवी जी। एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, चूंकि आपने ये वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वाली कहावत को चरितार्थ किया कि आप एकला चलो रे की राह पे चली, और वही है कि जैसे हम कहते हैं कि मैं चलता गया अपने सफर पे और फिर काफिला पीछे आता गया। तो आपके पीछे भी क्या कोई काफिला है जो आपने तैयार किया है मोटरसाइकिलिस्ट का? क्या आपने और लड़कियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी या किसी तरह का कोई प्रोत्साहन दिया कि इस रास्ते पे सिर्फ आप अकेली ही ना रह जाएं? आपने तो अपना जो जर्नी थी पूरी कर ली, या आगे भी कर सकती हैं, लेकिन क्या और ऐसे यंग लोग हैं जिनको आप तैयार कर रही हैं, जो आपने जो बनाया है, जो आपकी लीगेसी है, उसको आगे बढ़ा पाए? जी बिल्कुल, मेरा एक ग्रुप है हिमालयन एवेक्स करके, उसमें फीमेल राइडर्स की एक टीम है, जिसमें सिर्फ ना केवल यंग राइडर्स हैं, इसमें हाउस मेकर्स हैं, मदर्स हैं, और बहुत सारी प्रेरित महिलाएं हैं, जो कि एक जब आपकी एक न्यूज एक न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचती है, तो वो एक दिन या 2 दिन के लिए रहती है, मैगजीन के थ्रू 1-2 महीने के लिए रहती है, लेकिन जब आप लाइव वहां पर पहुंचते हैं, जहां जिन लोगों को आप इंस्पायर करना चाहते हैं, तो वो उनकी जिंदगी, जब तक वो जिंदा रहते हैं, अगर आप सक्सीड होते हैं उनको इंस्पायर करने में, तब तक वो जिंदा रहती है। तो मैंने एक इसी सोच को चलते हुए मैंने अपनी एक टीम बनाई हुई है, और गूंज करके एक हमारा एक पहले एक पड़ाव एक प्रोग्राम भी रहा था, जिसमें हम लाउड एंड क्लियर अपने जो भी मुद्दे होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर के, या जो भी आप मुद्दे होते हैं समाज में लेकर के उनको लेकर के आगे चलते हैं। और इसके माध्यम से
सिर्फ ना केवल महिलाओं को प्रेरित करना उद्देश्य है, इसके माध्यम से इंटायर यूथ को प्रेरित करना है कि जो आप करना चाहते हैं, पहले तो आप अपना दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपकी उम्मीद, लोगों की तो उम्मीद बहुत होती है हमसे, हमारे पेरेंट्स की, टीचर्स की, लेकिन आप अपने आप से क्या चाहते हैं, आपकी उम्मीद खुद अपने आप से क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो द्वंद, जो आपका, जो अपने आप से, इनर वॉइस से जो आप बात करते हैं, तो वो आपके डाउट्स क्लियर होना जरूरी है। तो इफ वी कैन हेल्प देम समवेयर, तो अभी आपका आगे क्या इरादा है? आप अभी और जर्नीज पे जाएंगी, या अगर जाएंगी तो क्या अकेली जाएंगी, या आपने जो और लोगों को तैयार किया है, यंग लोगों को, उनके साथ लेके जाएंगी? अभी और क्या करने का इरादा है? देखिए, अभी जब तक जिंदा हूँ तब तक चलने का इरादा है। मैं ये कहूंगी, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती है जब तक ऊपर वाला नहीं कहेगा। और डेफिनेटली कई रास्ते मुझे खुद अकेले तय करने हैं, और कई जहां लोगों की जरूरत है वहां के लिए टीम है। और ये टीम, जो टीम है वो पूरी तरीके से फुल्ली डेडिकेटेड है लोगों के लिए। और मेरे अभी और अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं, मैं यहाँ पे तो उनको शेयर नहीं करना चाहूंगी, उसके लिए मैं जरूर कहूंगी जस्ट बी ट्यून्ड, यू विल गेट टू नो। जी, अभी जो मेरा उद्देश्य है, जी, भारतीय संस्कृति, क्योंकि अभी पाश्चात्य सभ्यता की तरफ लोगों का रुझाव ज्यादा है। मैं ये कहूंगी कि जिस मिट्टी से हम हैं, जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं, जिस राष्ट्र से हैं, उस मैं कहूंगी मातृभूमि का एक कर्ज होता है, ऋण होता है। तो उसको नजरअंदाज ना करते हुए, वो भी दिमाग में लेते हुए चलना है। तो फर्स्ट आई ट्राई टू डू द जस्टिस विद माय ओन नेशन। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी मेरा जो मेनली जो मैंने किया है वो नॉर्थ की साइड में किया है, नॉर्थ ईस्ट में किया है। 2018 जो मेरी जर्नी थी, मैंने दिल्ली से स्टार्ट की थी। आई कवर्ड ऑल द 7 सिस्टर्स, 7 स्टेट्स, इंक्लूडिंग दिस ब्रदर व्हिच इज नोन एज सिक्किम, जिसमें 2 फॉरेन कंट्रीज थी, भूटान एंड म्यांमार, और आपका नेपाल। तो मेरा जो आगे जो मेरे कदम है वो नेबर कंट्रीज को भी इन्वॉल्व कर चलने के हैं। जी। जी। तो जिस तरह के एडवेंचर बाइकिंग में आप थी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ आपका पैशन के तरीके से रहा, या आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया उसके साथ, दैट इज हाउ यू कंटिन्यूड, या ये एक, अगर हम स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखें, क्योंकि दुनिया में बहुत इस तरह के स्पोर्ट्स हैं और बाइकिंग से भी रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं, क्या उस तरफ भी आपका कुछ झुकाव था या है कि आप एक एज ए स्पोर्ट इस चीज को आगे डेवलप करना चाहें? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जरूर, देखिए, लगाव तो मेरा जो बाइकिंग की शुरुआत तो एक लगाव से ही हुई थी। जो बचपन का शौक होता है, जब आप पिताजी के साथ जा रहे होते हैं, तो आई यूज्ड टू सिट ऑन टैंक एंड कभी-कभी हैंडल मैं पकड़ लेती थी, तो लगता था कि बाइक मैं ही चला रही हूँ और फैमिली मेरे पीछे बैठी है। तो वो जो एक लगाव रफ्तार से जो हुआ, वो आज तक बरकरार है। और बढ़ता इसलिए गया क्योंकि जब-जब मेरे को लोगों ने बोला कि आप लड़की हो और लड़कियों को ये चीज़ शोभा नहीं देती है, तो वो जो मैंने कहा, जैसे मेरा नेचर है रिबेलियन, कि लोगों ने जितना मुझे रोका उतनी मेरी जिद में इरादे पक्के होते गए। कहते हैं ना, वो दिल तो ज़िद्दी है। तो ऐसे ही एक बार शिकायत आई थी, क्योंकि बचपन की शरारतों से जुड़ी हुई थी। एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। पापा की बाइक, जो मेरी फर्स्ट बाइक थी, दैट वाज़ राजदूत, और बहुत छोटी हुआ करती थी, तो वो चोरी कर हम लेकर जाया करते थे आधा 1 किलोमीटर, और उसके बाद स्टार्ट करके वो चलाया करते थे। तो ऐसे ही पापा के किसी फ्रेंड ने घर देख लिया और घर पे आकर के शिकायत की कि आपको पता है कि आपके बच्चे क्या करते हैं? तो जब वो शिकायत घर पे आई, तो मेरे पिताजी ने एक चीज़ बोली थी कि जब मैं एजुकेशन को लेकर के अपने बेटी और बेटों के उसमें फ़र्क नहीं करता हूँ, तो शौक को लेकर के कैसे कर सकता हूँ? उनकी इस बात से, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि आज पक्का घर पे पहुँचने पर मेरी कुटाई होने वाली है, और मैं आई वाज़ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। पर मैं कहूँगी कि मेरे फादर के ये जो वर्ड्स थे, वो कहीं इतने गहरे दिल को लगे, और एक ऐसी ज़िम्मेदारी का एहसास कराया है कि जब पापा को इतना विश्वास है मेरे ऊपर, आज फौजदार साहब की बेटी के नाम से जाने जाती हूँ मैं। एक वक़्त आएगा, उसी दिन मैंने ठान लिया था, एक वक़्त आएगा कि जब मेरे नाम से मेरे फादर को जानेंगे लोग।
और क्योंकि बाइकिंग को अगर कहा जाए तो बहुत ही इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था। लोग कहते थे कि आवारागर्दी का है, क्या मिलता है आपको, सिर्फ पेट्रोल फूक करके आ जाते हो बेवजह। तो मैं कहूंगी कि डेफिनेटली पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एज अ स्पोर्ट नाउ। एंड अगर आपने मेरी फोटोग्राफ देखी हो, मैंने मोटोक्रॉस वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया है एंड आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन दैट। लोग इसको एज अ स्पोर्ट ले रहे हैं। अब भारत से भी बाहर जा रहे हैं स्टंट बाइकर्स, फीमेल बाइकर्स आ रहे हैं। आपके डकार रैलीज वगैरह जो है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, बहुत मैं कहूंगी कि भारत के सारे प्रदेशों में सबसे अग्रणी प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ पे बुद्धा सर्किट भी बनाया हुआ है मोटर स्पोर्ट्स को लेकर के। तो मैं कहूंगी इनकी सोच बहुत ही आधुनिक है और बहुत ही आगे बढ़ने वाली है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। और इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको मेरे से ज्यादा अच्छी स्टोरीज मिलेंगी। जी जरूर जरूर, हम लोग इंतजार करेंगे आपकी और सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानने का। एक चीज और मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि बाइक सारे ही हम लोग चलाते हैं, मैंने भी बहुत लंबे समय तक बाइक चलाई है, तो आप इतनी लंबी लंबी दूरी तक गई, इतनी हाइट्स पे गई, इतने पासेस आपने कवर किए, तो वो कौन सी ऐसी फीलिंग है जो आप सबसे ज्यादा इंटेंसली महसूस करती हैं जब आप बाइक इस तरह से चलाती हैं और इतने लंबे लंबे सफर पे जाती? आपने दिल की गहराई से मेरा जो जवाब निकालने वाला एक सवाल पूछा है। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड हम लोग सभी विश्वास करते हैं डिवाइन फोर्स में, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। हम लोग जब आते हैं, कभी ना कभी हम लोग के जहन में एक सवाल आता है कि जब यहाँ पे आए हैं, पैदा हुए हैं, तो व्हाट इज आवर पर्पस, व्हाई वी आर हियर। क्योंकि जब ऊपर वाले ने भेजा है तो कुछ ना तो होगा, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं भेजा है। तो व्हाट इज आवर पर्पस। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टार्ट होता है आपके ड्रीम से, क्योंकि अक्सर जो बचपन में देखे हुए ड्रीम्स होते हैं जो आपको आगे बढ़कर करना है, आगे चल कर के करना है, वो तभी तय हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी जर्नी में भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य से कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो बाइक एक ऐसी थी जो मेरी बचपन की मेमोरी से जुड़ी हुई थी, जिसने मुझे जब भी मैं टेंस हुई, मैं परेशान हुई घर के मुद्दों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, बाइकिंग एक ऐसी चीज थी कि जब व्हेन आई यूज्ड टू सिट ऑन बाइक एंड अपना फुल थ्रॉटल करके जब रोड पे चलती थी, तो मेरे को मैक्सिमम सॉल्यूशंस मेरी प्रॉब्लम के उसी दौरान मिलते थे। इट इज मोर लाइक ए मेडिटेशन फॉर मी। जब मैं सुनती हूँ तो मैं अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर पाती हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द ओनली वन ऑन दिस रोड एंड अब ये सिर्फ मेरे लिए ही बनी हुई है। तो कहते हैं ना कि जब आप अपने आप से, हम मिरर में तो अपने आप को सुबह शाम कई बार दिन में देखते हैं, पर कि वो कौन से ऐसे लम्हे होते हैं जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर वॉइस, या कहते हैं अपनी आत्मा से रूबरू हो पाते हैं। तो ये मेरे लिए वो कुछ खास पल होते हैं जब मैं अपने आप से मिल पाती हूँ। तो जब आप बाइक चलाती हैं और यूजुअली आपकी स्पीड क्या रहती है, और जो स्पीड है वो आपको कितना थ्रिल करती है? स्पीड के भाई अभी तो ट्रैफिक रूल्स ऐसे आ गए हैं, अगर मैं स्पीड बता दूंगी आपको तो मेरा चालान कटवा देंगे आप। डेफिनेटली। बट बाइक मैंने 200 की स्पीड तक चलाई है। अभी एट प्रेजेंट मेरे पास डुकाटी स्पोर्ट्स 1100 है, लेकिन डुकाटी की और भी ऐसी बाइक्स हैं जो मैंने अभी उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड 200 तक मैंने टच किया है। और डर तो कहें तो वो कहीं से छूट कर भी नहीं जाता है। बस जब फुल थ्रॉटल जब आप चलाते हैं, मेरे को लगता है दिस इज द मोमेंट आई एम लिविंग माय लाइफ। नहीं, 200 की स्पीड आपने चलाई तो नेचुरली हम लोग कार चलाते हैं तो हम 150 के ऊपर नहीं जा पाते, तो 200 आपने चलाने की हिम्मत जुटाई, वो कैसे जुटाई? और क्या 200 की स्पीड पे भी आपको सचमुच डर नहीं लगा? देखिए, अब डर की अगर बात कहते हैं तो मैं इसके लिए 4 पंक्तियां हैं अपनी जो शेयर करना चाहूंगी। जी। सिर्फ ना केवल स्पीड को लेकर के, बल्कि और भी जीवन में जब मैं अपनी मुश्किल दर्रों पे निकली, अकेले खास तौर पे,
बिकॉज जो आपका लद्दाख है इट्स कम्प्लीटली बैरन लैंड जहाँ पे पेड़ भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब आप जंगल जाते हैं तो आपको पेड़ों से, वनस्पति से थोड़ी सी सांत्वना मिलती है, हिम्मत मिलती है, बिकॉज दे आर लिविंग थिंग। आपको सूखे बेजान पत्थरों और पहाड़ों से क्या हिम्मत मिलेगी? तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी डर नहीं लगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, मंजिल मेरी खुद ब खुद आती गई करीब मेरे, मेरा हौसला देखकर। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब आपके अंदर से डर नाम की चीज खत्म हो जाती है। देखिए, अगर आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो किचन में जाकर के एक सिंपल सा रोटी ही बनाना क्यों ना हो, एक साधारण सा, बिकॉज महिला हूं, एक साधारण सा उदाहरण दूंगी, क्योंकि उसमें भी आपको पहले गैस जलानी है, उसमें डर लगता है जब आप पहली बार जलाते हैं कि क्या होगा। जब गैस जल जाती है, जब आप तवे पे से उतार करके रोटी को जब उस पर डालते हैं, तब डर लगता है। लेकिन जब डर किसी भी स्थिति में हो, जब आप पहली बार कभी, जब नए नए मॉल्स खुले थे, एलिवेटर्स पे जाते थे या लिफ्ट में जाते थे, तो उसमें एंटर करने में भी डर लगता था। तब तक देखिए, जब तक आप अपने अंदर का ये डर खत्म नहीं करेंगे, आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। तो डर को तो उस पे विजय जी पाना जी पहला कदम जी, है। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। डर पे तो काबू पाना ही पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जीत है। और मुझे लगता है कि मेरा काफी काम आसान हो जाएगा आपके इस सेशन के बाद। हमारे जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं वो अपने डर पे काबू पाएंगे और लाइफ में कुछ साहस के साथ, कुछ हिम्मत के साथ आगे करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं स्टूडेंट्स को आमंत्रित करता हूँ, जो भी स्टूडेंट सवाल पूछना चाहते हैं वो ऑन कैमरा आए और अपने सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। और मैम, आप काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन है, मेरी भी, और जितने भी वुमेन्स या गर्ल्स आपको देखती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल से अभी जितनी भी मोटरसाइकिल एडवांस हो गई हैं, आपकी जो भी जर्नी थी उसको आपने कैसे टैकल करा? और एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है अगर आप माउंटेन्स पे जाते हैं, खासकर एडवेंचर मोटरसाइकिल में, कि उनकी सैडल हाइट बहुत ज़्यादा होती है, सीट हाइट जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें और फिर वुमेन की हाइट में वो चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं, उसको टैकल करना, उसको मैन्यूवर करना। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा हम लोगों को यहाँ बताइए। यहाँ यहाँ पे पल्लवी जी मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे एल्यूमिनाई हैं, पास्ड आउट स्टूडेंट हैं, और ये खुद बाइकर है और इनकी बाइक्स में बहुत रुचि है। तो इसीलिए ये खास तौर पे इनको पता लगा कि आप इस प्रोग्राम में आ रही हैं, तो आपसे सवाल पूछने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। बहुत ही थैंक कम यू। स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पास आउट होने के बाद में भी अपने स्कूल से, कॉलेज से लगाव रखते हैं और जुड़े रहते हैं। जी मैम। तो आप सवाल एक एक करके करें, बिकॉज आपने बहुत सारी चीजें पूछ ली है। सॉरी अगर सर। मेरी बाइक की लाइफ की जर्नी आप सुनना चाहेंगे, तो मेरी स्टार्टिंग हुई थी राजदूत से, फिर 2 स्ट्रोक बाइक जो आपकी, फिर 4 स्ट्रोक आपका कावासाकी पे मैं गई, फिर कास्ट आयरन बुलेट आपकी चलाई। एवेंजर पे मैंने अपने प्रीवियस 2 पासेस किए थे। उमलिंगला जरूर मैंने अपना ट्रायम्फ बॉर्नविल पे किया था, और इस समय मेरे पास डुकाटी स्ट्रेंगर है। तो वो तो ये एक ऐसा होता है कि जब आप कहते हैं ना, मैं उदाहरण गलत नहीं होगा, जब आप नशे की आपको लत लगती है, तो वो पहले थोड़े से शुरू होती है और फिर वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो वो एक के बाद एक जैसे होता है। और जैसे आपने माउंटेन पासेस की बात करी, हाई एल्टीट्यूड की, डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम प्लेन्स जैसे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश और इधर की तरफ हो गए, क्योंकि आपको ऐसी जगहों पे जाने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है। और क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप जाते हो, एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस होते हैं, जिसमें आपका ब्लड थिक हो जाता है और हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें लॉट ऑफ प्रिपरेशन इज इन्वॉल्व। तो वो जब आप कभी प्लान करें तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, डेफिनेटली। श्योर पर मैम, थैंक यू इसमें सो हाँ, मच। पूरी तरीके से बहुत सारी तैयारी की और प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है। वहां जब आप जाएंगे ना, देयर इज अ सेइंग इन लद्दाख, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं, पहले पूरी उसकी नॉलेज
वेदर से रिलेटेड, टेरेन से रिलेटेड, वहाँ के लोगों से रिलेटेड पहले पूरी एकत्रित करें ताकि आप कंफर्टेबली ट्रेवल कर पाए। जी, तो ये बहुत और जरूरी Thank you so much. जी, and और same thing is applicable in everything whatever you do. एग्जैक्टली चाहे पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं आप, जर्नलिज्म के हैं, और ये भी मैं बोलूंगी एडवेंचर से कम जोखिम भरी एक जी जी ऑक्यूपेशन जी है। हाँ, पत्रकारिता में अपने तरह के की जोखिम बिल्कुल। है, नो जी डाउट। जी विशाल साहे जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विशाल। पल्लवी मैम, जिस तरीके का मैं बैकग्राउंड आपका जानता हूँ, एक आप आगरा जैसे शहर से आप निकली, उसके बाद एक ऐसे परिवार में आपकी शादी हुई जो एक बड़ा डिसिप्लिन परिवार है, मिलिट्री डिफेंस से रिलेटेड वो परिवार है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत रुचि आपकी रही, जिस तरीके से आपने बताया, और जैसे खासतौर पर जैसे मुझे व्हाइट वाटर राफ्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे करने का भी बहुत शौक होता है। मैं लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कोडियाला से करने की। मैं हमेशा मरीन ड्राइव या शिवपुरी से ही करी, मेरी कभी हिम्मत नहीं, द वॉल के नाम से मैं घबराता था, लेकिन आज उम्मीद करी है कि आपकी बात सुन के शायद मैं कोडियाला से कर पाऊंगा। दूसरा मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, मैं यहाँ पे मेल फीमेल का रेशियो की बात नहीं कर रहा, कोई भी जन होता है, बहुत सारे जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, जो बहुत सारी चीजें वो करना चाहते हैं, लेकिन रीजंस यहाँ पे हो जाते हैं कि वो लोग अपनी बात को शेयर ही नहीं कर पाते। वो इसी चीज से डरते हैं या इसका क्या होगा, उसके रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा परेशानी वो क्रिएट करना है। बहुत सारे लोग हैं जो बाइकर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग तरीके का एडवेंचर करना चाहते हैं, लेकिन वो जो समाज है, जो लोग हैं, फैमिली है, फ्यूचर क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। तो यू आर द परफेक्ट वन जो जिसका आंसर दे सकते हैं कि लोगों को, हम सबको किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों पे जाएंगे तो मैं कहूंगी कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैं कहूंगी ये वो जब आप एक स्मूथ रोड पे चलना चाहते हैं और जब बैरियर्स आते हैं तो दिमाग में बहुत गुस्सा आता है, किस बेवकूफ ने बना दिया और इतने ऊंचे क्यों बना दिए, राइट। तो ये जो लोग हैं ना, ये उन्हीं का काम करते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ एंड यू वांट टू गेट सक्सीड, तो इस धारणा को बिल्कुल अलग करना होगा। जैसे कि आपने बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ, है ना, स्काई डाइविंग करना चाहता हूँ, तो शायद मैं कर पाऊंगा, शायद और चाहता हूँ, ये सारी चीजें ना मैच नहीं करती हैं। जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे कि मैं ये करूंगा और ये एक दिन को टाइम निकालना है और मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है, उस दिन आप आधी जंग जीत लेते हैं। बिकॉज आप उस दिन आपको, देखिए, हमको ये लगता है कि हमको सेटिस्फाई करना है, बिकॉज इर्द गिर्द सबसे आसपास का अगर देखें तो हमारी क्लोज फैमिली होती है। जैसे मेरे केस में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे लॉज हो गए, एंड अब सबसे ज्यादा बच्चे हो गए, जो बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी अगर मुझे कुछ करना है तो वो उसका निर्णय मैं लूंगी। और बाकी कहते हैं ना, जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं, आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, बाकियों की सहमति आपके साथ जुड़ी जाती है। जब मेरा पहली जर्नी थी, जब मुझे निकलना था, मैंने बताया, माय मदर वाज द वन who was against me, who was against my idea. पर जब मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, she was the one जिन्होंने मुझसे पूछा, बेटा नेक्स्ट जर्नी पे कब जा रही हो। और ये मैं कहूंगी जो ये मेरी जिद जो थी, जो करने की बरकरार रही लगातार। जब एक समय था जब हम लोग के टाइम में 90s में कुछ भी करना इस तरह से महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण, बहुत मुश्किल होता था। हर रास्ते पे मुश्किलें होती थी। जनरली फैमिली ही आपका डिसीजन लेती थी कि आपको क्या करना है, एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ भी, स्पेशली जब आप छोटे शहरों से आते हैं, क्योंकि उसमें समाज का डर बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जो सोच थी, जहां तक मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी बढ़ती उम्र के साथ में समझौता कर लिया था कि अब यही हमारी लाइफ है और हमें यही करना है। पर जब आप यंग होते हो, आपके अंदर एक वो ज़ील होती है, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, बट फॉर दैट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। कहते हैं ना, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, विक्ट्री इज रिजर्व फॉर दोज हु आर विलिंग टू पे द प्राइस। तो फर्स्ट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। जब आप उदाहरण
अगर आप खुद चाहते हैं तो आपको एक ऐसा उदाहरण सेट करना पड़ता है जिसको लोग फॉलो करें, जी बिकॉज सब में इतनी हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत जुटाते जुटाते वक्त लगता है, एक को पकड़ करके दूसरा अ, ऊपर चढ़ता है। जी बिल्कुल। जी जी जी, तो हम सभी लोग आपकी बात मान के सभी लोग कोशिश करेंगे, सारे हमारे टीचर्स भी अब कोशिश करेंगे कि अपनी कंफर्ट जोन को, क्योंकि जैसे तरह तरह के चैलेंजेस हैं, हम अपने यहाँ मीडिया स्कूल में भी बहुत तरह के काम करते हैं। बहुत सारे जो हमारे सहयोगी हैं, टीचर्स हैं, उनको लगता है कि कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आई टेक ए लीड, आई स्टार्ट द वर्क। फिर धीरे धीरे लोग करने लगते हैं, फिर सक्सेसफुल हो जाता है, फिर उनको समझ में आता है कि ये हो सकता था, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत थी। जी तो जी जब आप शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी, फिर आपकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, आप और ज्यादा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी जी। आप हमारे और भी काफी सारे छात्र हैं। अदिति, अनु सवाल पूछना चाहते हैं। अदिति, अपना कैमरा ऑन करो और सवाल पूछो। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, as I know you are 42 years old और आपने बहुत सारी स्टडीज करी हैं, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, और फिर आपने कहीं जाके आगे में डिसाइड करा कि मुझे बाइक राइडिंग करनी चाहिए। जी। तो मैम, आई जस्ट वांट टू नो एक बैड एक्सपीरियंस आपने जब राइड करा हो जो आपको अभी तक याद हो, कैन यू शेयर इट? मैं बिल्कुल सबसे पहला एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं पली बड़ी आगरा में, शादी मेरी लखनऊ में हुई और फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई और मैं दिल्ली आई। तब से 2012 में मैं दिल्ली आई, दिल्ली तब से मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे आकर के मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था बाइक राइडिंग का, एंड मैं उसके उन लोगों के साथ में एक राइड पे गई और अनलकीली मैं वापस आते में कहीं पीछे छूट गई थी। और क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं घर से निकली थी, आई वाज़ नॉट दैट कॉन्फिडेंट जितना हम पहले हुआ करते थे। तो मैं रास्ते में रोती हुई भी आई और मुझे डर भी लग रहा था कि मैं सही सलामत घर पहुँचूँगी या नहीं पहुँचूँगी, बिकॉज़ हम लोग शिमला गए थे और वहाँ ये डर भी था और कहते हैं ना, मैं बिल्कुल अकेली थी एंड आई वाज़ टॉकिंग टू माय सेल्फ कि ये क्यों हुआ है, और ईश्वर से सवाल पूछ रही थी कि ये मेरे साथ में क्यों हुआ है? इतने सारे लोग थे और मैं सबसे अलग कैसे हो गई? कैसे पीछे छूट गई? तो वहीं कहीं मुझे ऊपर वाले का ये जवाब मिला था, मे बी आई एम बोर्न लीडर। आई एम हियर टू लीड, राइट? एंड उस दिन वो मेरा एक बैड एक्सपीरियंस भी था, पर उस सवाल का जब जवाब मुझे खुद अंदर से मिला, तो वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस बना। उस दिन जो मेरे अंदर के डाउट थे, वो क्लियर हुए मेरे को लेकर के, और उस दिन जैसे सर ने बताया एकला चलो, और जो एक हिम्मत आई मेरे अंदर, वो मेरी गाड़ी में तब से लेकर के आज तक ना पेट्रोल खत्म हुआ है और ना ब्रेक लगे हैं। जी, ओके मैम। आई थिंक इससे काफी लोगों को समझ में आया होगा कि आपको लीडरशिप क्वालिटी भी अपने में डेवलप करने की जरूरत है, सिर्फ फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जब आप लीड लेंगे तो बहुत सारे लोग फिर आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। शशांक। मैं एक जी चीज और कहना जी चाहूंगी अदिति जी बेटा आपको, जी हर एक बैड एक्सपीरियंस में आप उसको बैड एक्सपीरियंस में, आपसे ये कहूंगी, बैड एक्सपीरियंस की तरह ना देखें, उससे मिलने वाले लेसन को देखें कि उसके पीछे मैसेज क्या है, जो ऊपर वाला आपसे कनेक्ट करना चाहता है, जो आपको सिखाना चाहता है। आप उससे मिलने वाले सबक को सीखें और उससे उससे समझें कि क्या है हिडन मैसेज आपके लिए। जी। शशांक, सवाल पूछो। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने फादर की बाइक लेकर चलाया करती थी, तो और वो आपको अप्रिशिएट भी करते थे इन सब चीज़ों के लिए, तो क्या वो आपके प्रेरणा थे? और आपके फेवरेट बाइकर कौन है? क्योंकि आप तो बहुत लोगों की प्रेरणा है, आपके फेवरेट कौन है? मैं जैसे आपने बोला पापा को लेकर के, बेटियां अक्सर, ऐसा नहीं है कि बेटियां ही अपने पापा की लाडली होती हैं, बेटियों के भी जो हीरो होते हैं ना, दे आर देयर फादर। तो मेरा जो, अगर आप पूछेंगे कि कौन मेरी प्रेरणा है, वो मेरे पिताजी ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक इस तरह से पाला है और इस तरह से जीवन जीना सिखाया है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट कि यू आर बोर्न एज अ फीमेल तो आपको सिर्फ हाउस से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए कि घर का रख रखाव, किचन में काम करना है, जो अक्सर लोगों की आम धारणा होती है कि शादी करके आपको वही तो करना है।
पर उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया। जब मैंने पहली डिमांड करी कि मुझे साइकिल चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि साइकिल तो हम दिला देंगे, पंचर जोड़ना आता है? तो उन्होंने बोला जाओ पंचर जोड़ना सीख करके आओ। तो जब हम स्कूल जाते थे रिक्शे से, रास्ते में उतर करके पंचर वाले के पास आधा 1 घंटा देखते रहे कि ये पंचर कैसे जोड़ता है, पंचर कैसे जोड़ता है, और घर पे आकर बोला पापा पंचर जोड़ना सीख लिया, आप साइकिल दिला दो। तो पापा ने साइकिल दिलाने के बाद साइकिल पंचर करी और बोला अब इसको जोड़ो। जी, बहुत ही अच्छी, मतलब आपने आपको जो काम करें पहले उसकी जो इंट्रिकेट चीजें हैं, अंदर की चीजें पहले सीख ले, तो हंसने का आगे चांस नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये छोटे-छोटे सबक आपको जी। परफेक्ट बना देते हैं। तो मेरे जो अगर आप कहेंगे मोटिवेशन और हीरो, बिकॉज़ ही वाज़ फुल ऑफ, मतलब इतने लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके ऐसे थे, और मेरे लिए जब भी मैं अटकी हूँ, वही प्रेरणा स्रोत बनकर के आगे आए हैं। जी, गुरवीन कौर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। गुरवीन, सवाल पूछो। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मिडिल क्लास लड़की के लिए कितना कॉस्टली अफेयर है ये बाइक का शौक? जैसे 2 सेफ्टी गियर्स इतने महंगे आते हैं, तो क्या कोई मिडिल क्लास लड़की अपना ये सपना देख सकती है? आई एम आल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास। Yes, ma'am. लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, क्लास डिसाइड नहीं करती है आपके पैशन को लेकर के। क्लास डिसाइड नहीं करती है आपके पास कितना पैसा है, कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप किसी शौक को लेकर के इतने ज़्यादा सीरियस हैं, तो आप अपने मीन्स खुद क्रिएट करेंगे। मैं अपने जो शौक हैं, मेरे हस्बैंड ही इज़ एन ऑफिसर, वो अपना काम करते हैं, लेकिन जो अगर मेरे शौक को लेकर के बात आती है, तो मैं एक भी पैनी नहीं लेती हूँ। मैं अपने मीन्स के लिए, अपने जो शौक है उनके लिए, अपने खर्चों के लिए खुद ही काम करती हूँ और खुद ही उनका खर्चा निकालती हूँ। चाहे वो बाइक लेने से लेकर के हो, चाहे वो गियर्स लेने से हो लेकर के हो। तो ये मैं अगेन वापस से आपको बोलूँगी कि अगर आप किसी भी अपने सपने को लेकर के सीरियस हैं, सिर्फ बाइक नहीं है, अगर आप लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो नेवर एवर थिंक कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले आप अपना इरादा मजबूत करिए कि हाँ, मुझे ये करना है, अपने डाउट्स क्लियर करिए। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि हाँ, मुझे करना है, साधन आपके पास जुड़ते चले जाते हैं। जी, थैंक यू पल्लवी जी। अब हम चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। सवाल कई सारे हैं, चैट में हैं, लेकिन मोर और लेस वो आप जवाब दे चुकी हैं। जैसे अनाइका का पूछना था कि आपका मोस्ट एडवेंचरस पार्ट ऑफ योर लाइफ जर्नी क्या था और क्या लेसन्स आपने उससे लिए, इसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया। देव वर्मा का पूछना है कि कोई इंसिडेंट या एक्सपीरियंस जो कभी आप भूले नहीं, वो जवाब भी आपने दे दिया। तो ऑलमोस्ट सारे जवाब पूरे हो चुके हैं। खुशी श्रीवास्तव का एक सवाल है, हाउ डिड यू मैनेज योर फैमिली, योर सन्स एंड योर ड्रीम एट द सेम टाइम? हाउ डिड योर सन्स रेस्पॉन्ड टू इट व्हेन दे गेट टू नो दैट यू आर गोइंग टू बिकम ए राइटर? बिल्कुल। मैंने कहा अगर आप वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप अपना एक कॉलेज लेकर के चल रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू रन इट ऑल अलोन, यू रिक्वायर अ टीम फॉर इट। तो डेफिनेटली व्हेन यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, इट्स अ टीम वर्क अगेन, आई विल से। नाउ आई एम मैरिड, तो मेरे हस्बैंड एंड मेरे बच्चों का उनकी सहमति, उनका परमिशन, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूर बनता है। मेरे हस्बैंड का मेरे को पूरा सपोर्ट रहता है। और अक्सर जैसे मैंने कहा था, डर मुझे लगता है, कभी-कभी सभी को लगता है, कई बार डाउट में भी होते हो कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसको लेकर के मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक बार ये बोला था, बिकॉज़ मोर देन मी ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट मी, मोर कॉन्फिडेंट अबाउट मी कि आई कैन डू एनीथिंग। तो उन्होंने मुझसे ये बोला था, जब तुम्हें ये लगे कि कभी ऐसा लगे कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकती हो, तब अपने आप को मेरी नज़र से देखना, बिकॉज़ मेरी नज़र में देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। और बच्चों का ज़रूर, जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो वही बोलते हैं कि मम्मी बहुत दिन से आप राइड पे नहीं गए हो, क्यों नहीं एक राइड पे चले जाते हो? बिकॉज़ जब तक आप राइड पे नहीं जाते हो, आप शांत होकर आ जाते हो, तो आप शांत रहते हो, घर में भी शांति रहती है। बट ऑन पॉजिटिव नोट दे ऑलवेज सपोर्ट मी एंड दे नो वेरी वेल, आई हैव ट्रेन्ड देम like that, they know how to respect a lady and how to give importance to their dreams, their passion. तो डेफिनेटली आगे चलकर ये लोग उसी तरह से करेंगे। बट
हाँ, इन लोग का एक कंसर्न रहता है, आप जहाँ पे भी जाओ सेफली कम बैक। जी तो वैसे तो हम कार्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं। प्रोफेसर सुष्मिता वाला, यू वांट टू से समथिंग, ऐड समथिंग इन द लास्ट? मैं आप मैम बोले, मैं उससे पहले एक इंसिडेंट जरूर शेयर कर देना चाहूंगी। मैंने कहा था वक्त पता नहीं चलेगा और जितना भी वो कमी पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि डोंट बी अफ्रेड टू फेल, राइट? तो मेरा इससे क्योंकि आपने एक पीछे एक सवाल भी पूछा था, किसी ने लाइफ का कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस, व्हेन आई वाज गोइंग टू उमलिंगला पास, जो 2017 के बाद में वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास कहा जाता है, जिसकी हाइट है 19,323 फीट। जब मैंने ठाना कि मेरे को वो करने के लिए जाना है, इट्स इन सदर्न लद्दाख, तो मैं कैरी तक पहुंची थी, ले पहुंची, ले के बाद में कैरी पहुंची थी। तब मैं वहां पे पहुंचने के बाद मैंने देखा एंटायर इंडस रिवर वाज ऑन रोड, पूरा फ्लड आया हुआ था एंड किसी भी तरीके से उसको क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था। जो आपके व्हीकल्स थे वो भी वहां से यू टर्न लेकर के वापस जा रहे थे। मैंने बस सामने आधे घंटे खड़ी रही कि सामने से कोई व्हीकल आए तो मेरे को एक हिंट मिल जाए कि मैं क्रॉस कर सकती हूँ या नहीं। कई लोगों ने, जितनी गाड़ियां हैं, उन्होंने बोला मैम आप कर ही नहीं सकते, जब 4 व्हीलर वापस चले गए आप 2 व्हीलर से कैसे कर लोगे? तो बस एक ये चीज थी, अगर नहीं करना था तो ऊपर वाले ने मेरे को यहाँ तक क्यों भेजा? एक जो फेथ था, इट्स अ जर्नी ऑफ फेथ, अगेन आई विल से, कि क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं आधे रास्ते तक आ गया, मैंने ये कोर्स भी कर लिया, अगर मुझे ये यहाँ नहीं करना था, तो वो लोग कई बार होते हैं कोर्स बीच में छोड़ करके चले जाते हैं या कंफ्यूज इतने ज्यादा रहते हैं कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर मैं भी ऐसा ही कोई डिसीजन लेकर के वापस आ जाती तो आज मैं शायद आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए नहीं बैठी होती। पर उस समय मेरा एक सवाल था ऊपर वाले से जो मेरा चल रहा था। मैंने कहा अगर आपने मुझे यहाँ भेजा है, if you have given me the thought कि I should do this, मेरे को यहाँ ये जाना चाहिए और उमलिंगला तक पहुंचना चाहिए, then what's stopping me? शायद वो मेरा खुद के ऊपर एक डाउट था जो मुझे रोक रहा था। बस सामने से एक आर्मी का ट्रक मैंने आते हुए देखा कि उसके टायर्स कितने कहाँ जा रहे हैं। उनसे मैंने पूछा, अंदाजा लिया, उन्होंने बोला बस रास्ते में बीच में चलिए क्योंकि रोड कहाँ से कटी होगी नहीं पता, और बस अपने ऊपर और ऊपर वाले का विश्वास, मेरे ऊपर जो विश्वास था उसको साथ लेकर कि मैंने उसको क्रॉस किया एंड मेड इट। तो कई बार होते हैं व्हेन यू आर अबाउट टू रीच, जस्ट सफलता के बहुत करीब होते हैं और आपको लगता है भाई ये पॉसिबल नहीं है, आई हैव वेस्टेड माय एंटायर ईयर एंड मनी। आपको पता नहीं होता कि आप बस अपनी सफलता के कितने करीब होते हैं। तो वो एक विश्वास जो अपने ऊपर है, जो आपने कभी शुरू करते समय किया, अंत तक वही विश्वास रखिए। जी दादा मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं कि हम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल सेशन रहा, और वाकई में अगर हम जिद पे आ जाएं कि हमें ये करना है तो हम 100% उसको कर सकते हैं। केवल एक बार डिसाइड करना होता है। अगर आप सोचते रह जाएंगे तो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। आगे करने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। और कुछ स्टूडेंट्स को मैं ये जरूर यहाँ पे राय दूंगी कि मैम ने इतनी सारी बातें शेयर इसलिए नहीं की हैं कि आप 200 पे बाइक चलाएं, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और वो उन्होंने उस जगह पे जहाँ पर कोई उनके लिए स्पीड नाम की चीज नहीं दी गई थी कि आपको इतनी ही स्पीड में बाइक चलानी है, वहां उन्होंने बाइक चलाई। अगर दिल्ली में बाइक चलाने की कोशिश करोगे या मेरठ हाईवे पे बाइक या गाड़ी फास्ट चलाने की कोशिश करोगे तो पनिशमेंट भी होगा एंड एक्सीडेंट्स भी होंगे। सो सेफली करना है जो भी करना है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, और जो डिसाइड करना है वो फाइनली डिसाइड करना है, फिर उससे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन वो सब तभी पॉसिबल है जब आप अपनी एजुकेशन अपने को स्ट्रांग बनाएंगे और सारी चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे, और उन जगहों के बारे में जहां आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां आप आगे काम करना चाहते हैं।
तो चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। पल्लवी जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि मुझे कंक्लूड क्या करूं, सारी अच्छी बातें हो चुकी, लेकिन अगर मैं कहूं कि टेक अवे क्या है जो आपने कहा पूरे सेशन में, आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की, आत्मविश्वास की बात की, अपने निर्णय खुद लेने की बात की, जो भी रूल्स है, रूल्स का जो स्टीरियोटाइपिंग है आपने उसको तोड़ने की बात की, कुछ अलग कुछ स्पेशल करने की बात की, लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं उसको एक डिटर्मिनेशन के साथ उनसे निपटने की बात की। आपने कहा कि देयर शुड बी नो लुकिंग बैक, जब आप आगे आ गए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं आ रहा है, जो वास्तव में बहुत ही मोटिवेटिंग बात आपने की। आपने ये कहा कि अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना है, क्योंकि नॉर्मली हम सभी को ये पता नहीं होता कि हमारी लिमिट कहाँ तक है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम सोच ही नहीं पाते कि हम ये कर सकते हैं। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण बात हमारे छात्रों को बताई। आपने कहा कि कोई भी लिमिट नहीं है हमारे सामने, जब हम काम, सपनों का कोई लिमिट नहीं होती, एज की कोई लिमिट नहीं होती। हालांकि यूथ के पास तो एज इज ऑलवेज टू देयर साइड। आज अगर कोई 19-20 साल का है तो उसके पास तो बहुत वक्त है करने के लिए। और आपने जो आगे उसके बाद भी कहा कि जो देयर हैज टू बी ए पर्पस इन लाइफ में कुछ होना चाहिए। अगर हम आए हैं जिंदगी में तो क्या करने आए हैं, तो दिस इज समथिंग विच आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैज टू थिंक अबाउट कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है और हम क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। आपने पैशन की बात की, डिटर्मिनेशन की बात की, और जो आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि हमारा कोई भी एक्सपीरियंस बुरा नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में हर अनुभव से ही कुछ सीखते हैं और वो हमारी लर्निंग हो जाता है जो हमें आगे रास्ता दिखाता है। और जो आखिर में आपने कहा कि जब मंजिल के पास पहुंच गए तो फिर उसमें रुकना क्या, मंजिल तक तो हर हालत में पहुंचना ही है। तो ये जो आपका दृढ़ निश्चय है ये हम सभी को प्रेरणा देता है। और आज 1 घंटे के सेशन में मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का जो भी सेशन में है वो मोटिवेशनल लेवल बहुत हाई होगा। हम ये कामना करते हैं कि आप अभी और ऊंचाई तक जाएं और बड़े अचीवमेंट्स लेके आएं जिस पे हम सब गर्व कर सकें, ये देश गर्व कर सके। और आप समाज के लिए जो करना चाहती हैं और जो पेइंग बैक की आपने बात की, जो वापस देना चाहती हैं समाज को, आप समाज को और अच्छे से वो सारी चीजें दे पाएं जिससे हमारा समाज और हमारा देश एक प्रगति की रास्ते पे आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.